خواتین کو معاشی اعتبار سے خود کفیل اور ہنرمند بنانے کے لیے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر سلائی سینٹر قائم کی جا رہی ہے۔ سومیا کالونی میں کامیاب تجربے کے بعد اسی نوعیت کا ایک سلائی سینٹر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے قدیم شہر کے قلعے روڈ پر قائم کیا گیا ہے۔ سلائی سینٹر کے افتتاحی پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اورنگ آباد سے معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر مولانا الیاس خان فلاحی کو مدعو کیا گیا۔ مولانا نے ربن کاٹ کر باضابطہ اس سلائی سینٹر کا افتتاح کیا۔ امیر مقامی ریاض الحسن عامر نے سلائی سینٹر کے قیام کے مقاصد کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین اپنی گھروں میں اور گھریلو مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ سلائی اور کٹائی جیسے کام سیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ ان کی اسی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان کے شہر کے مختلف علاقوں میں سلائی سینٹر شروع کیے جا رہے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا ماننے والا ہر شخص پروڈکٹیو بنے، ہر شخص نافع بنے، بینیفیشینٹ بنے، دینے والا بنے اور اس کے وقت کا بہتر سے بہتر استعمال ہو، ہے نا۔ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں ہیں وہ جتنے ہنر سیکھ سکتی ہیں وہ اتنے ہنر سیکھیں۔ یہ یہاں تو ایک سلائی سینٹر کے ایک بہت بڑا کام ہے یہ بھی، کیونکہ خواتین کے میدان سے اس کا تعلق ہے، اور بھی بہت سے پروفیشنز ہو سکتے ہیں یا بہت سی اسکلز ہو سکتی ہیں۔ تو آج کے زمانے میں یہ سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے وہ مرد اور خواتین حضرات کہ جو اگرچہ کہ ان کی عمر ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی وہ سیکھیں، کیونکہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ شریعت کو بہت پسند ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم اس سے خواتین کو ہنرمند بنانا چاہتے ہیں، جس سے حسب ضرورت وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں اپنی آگے کی زندگی میں۔ بہرحال اس حوالے سے ہمارے ٹچ میں جو خواتین آتی ہیں ان کے ہفتے وار اجتماعات وغیرہ میں بھی ان کو مدعو کرتے ہیں، اور اس سے ایک اسلامی اور دینی مزاج بھی ہمارے خواتین میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ آج کا بھی یہ افتتاح اسی غرض سے یہاں پر ہوا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے برادر ساجد، خدمت خلق ان کی ٹیم اور حلقہ خواتین کو کہ یہاں پر جو سلم ایریا ہے اور غریب بچیاں ہیں جو بھاری فیس دے کر نہیں دے سکتی اور سلائی نہیں سی سکتی، ان کے لیے ہم نے بہت معمولی فیس پر یہاں پر بچیوں کو سلائی سکھانے کا عزم کیا ہے۔ الحمدللہ ابھی سے ہی ہمارے پاس 3 بیچز تک کے بچیاں فل ہو گئے، ابھی اور بچیاں آ رہے ہیں جن کو ہم نے 3 مہینے کے بعد کی ڈیٹ دی ہے۔ سابقہ UPA حکومت میں کرپشن کے خلاف زور و شور سے آواز اٹھانے والے انا ہزارے اب خاموش کیوں ہیں؟ بنگلورو کے دورے پر آئے اینٹی کرپشن کمیٹی کے صدر ربیندر دیویدی نے یہ بات کہی۔ بنگلورو کے دارالسلام میں اینٹی کرپشن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر وائی سعید احمد نے کہا کہ کرپشن کی ایک بڑی جڑ انتخابات میں ہے، لہٰذا انتخابات میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ رشوت خوری اور بدعنوانی پر قابو پانے کے لیے عوام میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، انا ہزارے جی نے کانگریس کے خلاف آواز اٹھایا تھا، کانگریس سرکار چلی گئی، بھاجپا سرکار آئی، بھاجپا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، بھاجپا کے ساتھ میں ہیں۔ ابھی دیکھیے مہاراشٹر گورنمنٹ میں ایکناتھ شندے نے شپتھ لیا، وہ شپتھ لیتے ہی انا ہزارے فون کر دیا۔ اس کا مطلب جو بھاجپا گورنمنٹ مہاراشٹر میں ہے ایکناتھ شندے کے ساتھ جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں میں اس سے کنٹیکٹ کروں۔ انا ہزارے جی آنسر نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے۔ انا ہزارے جی سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کانگریس کے ٹائم میں آپ نے اتنے انسن کیا، آمرن اپوزن کیا، راج گھاٹ تک گئے، دلی تک جنتر منتر گئے، ابھی آپ کو کیا ہو گیا؟ بھاجپا پردیشوں میں اتنے کرائم اور کرپشن ہو رہے ہیں، اب اس کے بارے میں انسر کیوں نہیں کریں؟ اس کا مطلب بھاجپا نے آپ کا منہ بند کر دیا ہے، سرکار نے منہ بند کر دیا ہے، آپ بیٹھ گئے ہیں۔ تو میری یہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو اسٹریٹ اوے الیکشن سے شروع ہوتی ہے۔ الیکشن میں اگر کرپشن نہیں ہے تو میرے خیال سے 70% آپ کی کامیابی اس میں دکھ سکتی ہے۔ تو میرا ماننا یہی ہے کہ اگر اس کو جڑ سے نکالنا ہے تو اس کی اویئرنیس ولیجز تک پہنچانا ہے۔ دیکھیے ED کے جو آپ ریٹس کروائے جا رہے ہیں، سکتا ان کے ہاتھ میں ہے، اور جب سکتا جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے آفیسر انہی کی بات سنتے ہیں۔ تو یہ بات عام جنتا بھی جان چکی ہے
कि ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो जितने भी रेड्स हो रहे हैं वो अपोजिशन के लोगों के ऊपर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से केंद्र सरकार की साजिश है कि इसमें डर खौफ के ज़रिए से और करप्शन के ज़रिए से उनको बेंड किया जाए और अपनी सत्ता को, अपनी सरकार को चलाया जाए। तो हमारा मेन मकसद है कि एंटी करप्शन के खिलाफ हम जो भी करप्शन है, करप्शन के खिलाफ हम जाएं और करप्शन के खिलाफ जो भी हो सके हमारे से। करप्शन तो पूरा हम ये नहीं कर सकते, हम पूरा उसको मुकम्मल तौर से ख़त्म नहीं कर सकते, मगर हमारे हाथ से जितना भी हो सकता है, जितना भी हम कर सकते हैं, हमारे हाथ से जितना ये है वो हम करके दिखाएंगे। कोलकाता में पैदा हुई बिल्किस की जम्मू कश्मीर के केलर शोपिया में शादी हुई। उसका शौहर गुज़िश्ता 5 सालों से जेल में बंद है। बिल्किस के मुताबिक उसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत वॉशरूम्स भी नहीं मिले हैं और उसे उसके बच्चों को खुले में जाना पड़ता है। उसके मुताबिक वो मसाइब और परेशानियों का शिकार है। बिल्किस ने ज़िला इंतज़ामिया और महकमे RDD केलर से मदद की अपील करते हुए PMIAY स्कीम की दूसरी किस्त जारी करने का मुतालबा किया ताकि उसके पास झोपड़ी के बजाय अपना पक्का घर हो। बिल्किस ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बंद वॉशरूम फराहम करने की भी अपील की है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बैंक अकाउंट नंबर में साहिब इस्तात बिल्किस की मदद के लिए रुपए जमा करा सकते हैं। मजदूरी करती हूँ, जंगल जाती हूँ, अपने हाथों से थोड़ा बहुत कमाती हूँ, बच्चे को पढ़ाती हूँ, पेट पालती हूँ। मैं 2 बच्चे लेके कहाँ की जाऊँ, इन बच्चों को भी क्या करूँ। जिसमें ये बारिश जब होते है तो बारिश भी अंदर आते हैं। दूसरा ये जब मैं मकान के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने 1 किस्त तो दिया है मार्च को। फिर उसके बाद जब हमने बोला तो बोला नहीं, पहले मकान खड़ा करो, आधे मकान तक लेकर जाओ, फिर दूसरा किस्त हम दूंगी। तो अभी तक नहीं आया। तो मैं भी कहाँ से लाती इतने पैसे, इतना महंगाई भी है। अब मजदूरी हर रोज एक औरत को कहाँ से मिलेगी। यहाँ आदमी बैठ जाते हैं, आदमी को अच्छे तरीके से मजदूरी नहीं मिलते हैं, तो एक औरत को कहाँ से मिलेगी। बहुत मुसीबत उठाना पड़ रहा है अब मुझे। अब मुश्किल हो रहा है ऐसे भी, दोनों बच्चे की पढ़ाना, पेट पालना। उसको 5 साल हो रहा है, वो बंद है। पता नहीं बाहर जा रहा था, किसी केस में बंद हो गया है। वो और भी लड़का है एक। बिल्किस यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता में रहती है और इन्होंने यहाँ पे शादी की थी। और शादी के बाद जब 2 बच्चों ने जन्म लिया और उसके बाद इसके जो पति है उसमें कोई केस लगा है, वो उसका सज़ा जेल में काट रहा है। वो तो अपना सज़ा भुगत रहा है, लेकिन उसका जो परिवार है वो कसम पुसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुका है। बिल्किस के 2 बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई करते हैं और उनकी पढ़ाई के लिए और अपना पेट पालने के लिए बिल्किस को हर रोज़ मजदूरी करना पड़ रही है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू। बिमना में सड़क की हालत खस्ता है और लोग परेशान हैं। अय्याम मुहर्रम है और अज़ादारों को मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया ने तो इंतज़ामात मुकम्मल होने के दावे किए, मगर ज़मीनी हकीकत काफ़ी मुख्तलिफ है। देखिए हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की ये ख़ास रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम में अज़ादारों की सहूलत के लिए हर तरह के इक़दामात किए जा चुके हैं। सड़कें ठीक की जा रही हैं और जुलूस अज़ा में कोई मुश्किलात दरपेश न होगी। ये दावे थे इंतज़ामिया के जो मुहर्रम से कब्ल किए गए थे, मगर अय्याम मुहर्रम में तस्वीर इसके बरक्स है। बेमना श्रीनगर इसकी एक मिसाल है, जहाँ सड़क पर कीचड़ जमा है। लोग इंतज़ामिया से नाला हैं। LG इंतज़ामिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी फेल हो गई है मुहर्रम के काम करने में। खाली बेमना में नहीं, पूरी वादी में आप देखो, गवर्नर इंतजामिया ने कहीं मुहर्रम के कोई इंतज़ाम नहीं किया है आज टिल डे तक। अगर उनको अभी भी टाइम है 10वीं मुहर्रम तक, वो कुछ कर सकते हैं। अगर उनको चाहिए कि हमारे काम आना, क्योंकि मुहर्रम के लिए स्पेशली फंड्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये किसी की भीख नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कंजेशन इतनी है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, मगर बदकिस्मती रोड की हालत की वजह से उनको गाड़ी पर उस साइड में गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं और फिर पायदल आते हैं। अब पायदल के लिए भी ये रोड ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम या श्रीनगर तो आई यहाँ पे,
मगर उन्होंने हमसे बहुत सारे वादे किए, चाहे रोड के ज़्यादा तो हमारा ज़्यादा यहाँ पे रोड का मसला है, मगर उस पर कोई खरा नहीं उतरा, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम हो या श्रीनगर हो। हम श्रीनगर म्यूनसिपलिटी में आ रहे हैं, मगर वो भी कमिश्नर भी यहाँ पे आया था, उन्होंने भी ऐसा हम बोला कि यहाँ पे रोड ठीक करेंगे, विद इन फर्स्ट मुहर्रम तक ये सारा क्लियर हो जाएगा, मगर यहाँ पे कुछ नहीं। अब अगर आप भी देख सकते हैं तो यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा लोग चल नहीं सकते हैं, औरतें रात को वापस जब अज़ा खाने से बाहर निकलते हैं तो कीचड़ में गिर जाते हैं, बच्चों को कंधों पे उठा के हमें ले जाना पड़ता है घर। अब 2-3 जुलूस यहाँ पे निकलने वाले, चाहे 9th मुहर्रम हो या 10th मुहर्रम हो, बड़े जुलूस है यहाँ से निकलने वाले, मगर वो कहाँ से निकलेंगे। वाज़ेह है कि बमना श्रीनगर के मज़ाफ़ात में है और श्रीनगर म्यूनसिपल के तहत भी आता है। साथ ही ये इलाका बडगाम इंतज़ामिया से भी वाबस्ता है, मगर कोई इक़दामात नहीं हुए। लोगों का कहना है कि आने वाली 9वीं और 10वीं मुहर्रम को यहाँ बड़े जुलूस बरामद होते हैं, मगर जब सड़कें ऐसी हैं तो अज़ादार कहाँ जाएंगे। ने बोला हम तो मुहर्रम से पहले ये मतलब फिट करेंगे, मगर आज तो तीसरा मुहर्रम, अब तो फिट नहीं है, वहाँ ड्रेन जैसे थी वो वैसी। इंतज़ामिया इस मसले में बिल्कुल फेल है सर। देखिए उन्होंने बोला था कि पहली मुहर्रम से पहले हम ये रोड क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी आप खुद भी देख सकते हैं सर कि रोड की क्या हालत है। ये इस मसले में बिल्कुल इंतज़ामिया टोटल फेल है। कीचड़ में फंस जाते हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो चलने में बहुत दुश्वारियाँ होती हैं सर। जुलूस कैसे निकालेंगे हम? जुलूस सड़कों पे होता है तो जुलूस कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे हम सर? जुलूस में बहुत प्रॉब्लम होगी। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो सड़क को ठीक करने के लिए इक़दामात करे ताकि जुलूस अज़ा में कोई रुकावट ना आए और अज़ादारों को भी कोई मुश्किल ना हो, मगर ये तब मुमकिन है जब मुतअल्लिक़ा अफसरान ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लें। मुहर्रम के अयाम आने से कबल 10 दिन जो ज़िला इंतज़ामिया बडगाम है, डिविजनल इंतज़ामिया कश्मीर है या LG इंतज़ामिया है, उन्होंने दावे किए थे मुहर्रम में अज़ादारों को तमाम तर सहूलियत पहुँचाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन बेमना में की जो आपने तस्वीर देखी, बेमना में जो लोगों की आपने फरियाद देखी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंतज़ामिया के दावे कितने सच साबित है। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार गुज़श्ता 1 साल से इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि रोड की खस्ता हालत है, इसे ठीक किया जाए, लेकिन आज तक इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। और अयाम मुहर्रम है, यहाँ पे जुलूस अज़ा बरामद होने वाले हैं, ऐसे में जब रोड पे कीचड़ जमा है तो जुलूस अज़ा कैसे बरामद होगा? बड़ा सवाल है, जवाब इंतज़ामिया के पास है। न्यूज़ 18 के लिए बेमना से मैं आबिद हुसैन।